Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. I'm your biology teacher from the Trust School. Before proceeding towards our main lecture, let me tell you about value of the week, which is peace. Peace begins with a smile. So smile daily. Unit number 11, homeostasis, and our main topic for discussion is urinary system. We all very familiar with urinary system. Its actual definition is, it is an excretory system in human through which waste, water and salt are excreted from the body. Waste water और salt हमारी body से excrete होते हैं जिस system के through, that is known as urinary system. It has some components. Urinary system has two pairs of kidney, two ureters, one urinary bladder and single urethra. Here you can see components of urinary system in the form of a diagram. There are two kidneys which attach with ureter, left and right. Ureter attach, both of ureters are attached with bladder. In bladder, urine is temporarily stored. Bladder has an opening which is known as urethra. Through urethra, urine is excreted from our body. Functioning है different components की. Kidney filter blood and produce urine. Ureter carries urine from kidney to bladder. Urinary bladder temporarily stored urine and urethra carries urine. Urinary bladder से urine को carry करता है and body से excrete करवाता है. स्ट्रक्चर की बात करें किडनी की तो इन अपेरेंस डार्क एंड बीन शेप ऑर्गन है. साइज में अगर आप देखो तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर थिक एंड वेज अबाउट 20 grams. If he talks about location, against the back wall of abdominal cavity, like abdomen के पीछे वाली जो वॉल है उसके साथ दो किडनीज हमारी सेट होती हैं बिलो डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे और वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पर. As we know, we have a pair of kidney in our body, so vertebral column की दोनों sides पर kidney present होते हैं. Here you can see internal structure of kidney. One concave side जहाँ से renal vein, ureter और renal artery attach हो रही हैं, and one convex side जहाँ पर आपके पास cortex, medulla, renal pyramid and renal pelvis नजर आ रहे हैं. Cortex is the outer part of kidney which is dark in color and medulla is the inner part of kidney which is pale in color. Medulla हमारे पास बनाता है cones inside the kidney जिसको हम कहते हैं pyramids, renal pyramids. Nephron is a basic unit of kidney. Functional unit भी इसको कहते हैं. 1 million nephron in each kidney. यूनिट्स हैं ये किडनी के फंक्शंस के. 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं हर किडनी के अंदर. नेफ्रॉन के भी पार्ट्स हैं, रेनल कार्पसल एंड रेनल टिब्यूल. दो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के. हियर यू कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. फर्स्ट पार्ट जो हमारा है जिसे हम कहते हैं रेनल कार्पसल, उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है एंड ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज के ऊपर ग्लोमेरुलस कंसिस्ट करता है. रेनल टिब्यूल की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें हैं जैसा कि आप देख रहे हो. प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यू शेप एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं लूपोफाइनले, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. एंड आफ्टर दैट देयर इज कलेक्टिंग डक्ट and you can see flow of urine. ये जो arrows आपको नज़र आ रहे हैं these are flow of urines और जो red color का structure है these are capillaries. वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर्स की और फंक्शंस की बात करते हैं. रेनल कार्पसल में ग्लोमेरुलस का काम क्या है, नेटवर्क है कैपिलरीज का. बोमेन्स कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस. एंड इन सेकेंड पार्ट रेनल टिब्यूल proximal convoluted tubule है. It is the first portion of renal tubule. Lopofinale is a U-shaped portion. Distal convoluted tubule is the last portion of renal tubule.
कलेक्टिंग डक्ट का जो फंक्शन है दैट इज distal convoluted tubule of many nephron open in single collecting duct. जैसे इसके नेम से जाहिर हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट डिफरेंट डक्ट्स को कलेक्ट कर रही है और उनको एक सिंगल ओपनिंग दे रही है. These are all the parts of renal tubule. Let's talk about functioning of kidney. मेन फंक्शन जो किडनी का है वो यूरिन को प्रोड्यूस करना है और ब्लड को फिल्टर करना है. लाइक ब्लड एंटर हो जाता है हमारी किडनी के अंदर एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द किडनी फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है. आफ्टर फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है और सिक्रीशंस, दोबारा से सिक्रीशंस को भी अगेन रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन द किडनी. प्रेशर फिल्ट्रेशन की अगर आप बात करें तो व्हेन ब्लड एंटर्स इन द किडनी वाया रेनल आर्टरी के ज़रिए से जब ब्लड एंटर हो रहा है किडनी में, many arterioles and then to glomerulus. It approaches to glomerulus and pressure इतना ज़्यादा होता है कि water, salt and glucose and urea of the blood is forced out of glomerular capillaries. Glomerular capillaries से बाहर निकल आते हैं. Material passes into the Bowman's capsule and it is called glomerular filtrate. यानी glomerulus से जो filtration होती है उसको at the end हम कहते हैं glomerular filtrate. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है. उसके बाद 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड. जितने भी कंपोनेंट्स हमारे एब्जॉर्प्शन के दौरान चाहिए होते हैं वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं इन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस. और ये सारी रीअब्जॉर्प्शन होती है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस जैसा कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये सारी चीज़ें रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं इन अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले अलाउज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. डिसेंडिंग लूप जो है हैनले की वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड असेंडिंग लूप जो है हैनले की विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट. ट्यूबुलर सेक्रीशन जो लास्ट फंक्शन है किडनी का, उसमें अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द स्टेप्स डिफरेंट आयंस एंड यूरिया आर सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल. दिस इज डन टू मेंटेन ब्लड एट नॉर्मल पीएच विच इज 7.35 टू 7.45. ये सारी सेक्रीशंस इसलिए की जाती हैं कि यूरिन की जो पीएच है वो नॉर्मल रहे. हियर इज अ टेबल. द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज यूरिन. फिल्ट्रेट जो प्रेजेंट है रीनल ट्यूब्यूल में एट द एंड उसको हम यूरिन कहते हैं. एंड नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन यूरिन की यहाँ पर दी हुई है. वाटर है, यूरिया है, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड अदर आयन्स एंड कंपाउंड्स. हियर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you are more than welcome in your WhatsApp group. Thank you so much. Allah Hafiz.